So welcome to all in my channel Isan Study Adda. Now we are going to start the remaining part of our lecture, that is covalent bonding, structures of covalent bonding. So first we are going to study about the conditions for the formation of covalent bonding, how covalent bonds are formed, or what are the conditions which are necessary for the formation of covalent bond. Because if we want to do something, if we want to form the covalent bond, we need to know the conditions of the bonding, and as per this reduced syllabus or as per the board guidelines, we need to know each and everything for the MCQ. Multiple choice questions are the one which requires highly conceptual clarity to solve our questions. So now we going with the presentation which is related to our. So now I'm going to share my presentation. So let me see conditions for the formation of covalent bonding. Here clearly given that condition for the formation of covalent bonding. So we know the meaning of covalent bonding. What is the meaning of covalent bonding? So covalent bonding nothing but covalent bonding is what? Covalent bonding is nothing but our wait, I need to select. Covalent bonding is nothing but the sharing of the electrons. That is sharing of electrons. When we share the electrons, the covalent bond is formed. So meaning of bonding means the force of attraction. Force of attraction. जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बॉन्डिंग कहते हैं, और शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको हम कोवैलेंट बोलते हैं. दैट मींस कोवैलेंट बॉन्डिंग हमारी कैसी फॉर्म होती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग हमारी जो फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेशन से. इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन से होती है हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग. So after that we are using the first time, so there are so many problems with that, so kindly consider it. Now we are going to study about the conditions. We are going to study about condition of bonding. So first condition is here first we rub these things so we clearly see our and what is going to be. So first condition is here, both atoms should have 4 or more electrons in their outermost shells, that is non-metals. एक्सेप्शन इसमें कौन कौन से दिए हैं हमारे? हाइड्रोजन, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम. ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, बोरॉन के शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. दैट्स व्हाई they are saying that we have exceptions like hydrogen, boron, aluminum and beryllium. So both atoms should have 4 or more electrons. That means either atoms have 4 or 5, 6,
7, बिकॉज 8 को हम कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि 8 जो है हमारा अनरिएक्टिव होता है, दैट मींस इट इज अनरिएक्टिव, और वी कैन से दैट इनर्ट गैस, और इसको हम मूवेबल गैस के नाम से भी जानते हैं, वी कॉल इट एज बाय द नेम ऑफ noble gas also. So 4 और 5, 6, 7. So जिनके पास 4 और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे सारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे सारे कहलाएंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, दैट मींस दे आर एबल टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, दे कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होने पर इनके साथ शेयरिंग पॉसिबल होगी। क्या पॉसिबल होगी? शेयरिंग पॉसिबल हो, दैट मींस दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग शेयरिंग। ये शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन जल्दी फॉर्म करेंगे, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, तो यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग से इनका काम चल जाएगा, क्योंकि शेयरिंग में इनकी एनर्जी कम जाएगी और ट्रांसफर में इनकी एनर्जी ज्यादा जाती है। इसलिए नॉन मेटल्स जनरली, जो नॉन मेटल्स हैं वो कोवैलेंसी में जाते हैं, और कुछ मेटल्स भी होते हैं जो कोवैलेंस में जाते हैं। सबसे अच्छा जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है वो है हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ कोवैलेंसी को ही प्रेफर करता है। किसको प्रेफर करता है? कोवैलेंसी। आप कार्बन का ना ट्रांसफर देखेंगे ना कोऑर्डिनेशन देखेंगे, कार्बन के साथ आपको जो दिखेगी वो सिर्फ एक ही बॉन्डिंग दिखेगी, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसको हम कोवैलेंट बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। अभी इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो लेट मी रफ, थोड़ा इसको विजिबिलिटी क्लियर मिल जाए थोड़ी सी हमको इसके बारे में। ये है कि तो हमने यहाँ पे ये समझा कि 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये क्या बॉन्डिंग हमारी सही बन जाती है। ठीक है, इतनी पॉइंट क्लियर है, आई होप क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो है बोथ एटम्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? हमने पहले ही पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स देयर, जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट लूज करता है और उसमें जो एनर्जी लगती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी गिवन विच रिक्वायर्ड टू चेंज न्यूट्रल गैसियस एटम इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? एक नॉर्मल गैसियस न्यूट्रल एटम है, सपोज एक्स एक एटम है, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इलेक्ट्रॉन लूज करते ये कैसा बन गया? ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो इसमें जो एनर्जी लगी, इसमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। दैट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज देयर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जब अपना ऑर्बिट लूज करता है, उसे लूज करने में मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी लगता है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, हमने अपने पहली लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और हाई आयनाइजेशन एनर्जी किन में होती है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी जनरली मिलती है आपको नॉन मेटल्स। Generally, non-metals carry the high ionization energy because they having the tendency to gain electrons. They having the tendency to gain electrons, so they required higher energy, higher energy to lose electron, higher energy to lose इलेक्ट्रॉन। जब इनको लूज करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी तो इनको लॉस करने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो नॉन मेटल्स है उनकी पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में हमको पता है जनरली 4 या 4 से ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही हम प्रेफर करते हैं
और ये हम जनरली नॉन मेटल्स में कंसीडर करते हैं। तो जनरली जो कोवेलेंस से केस मिलता है वो नॉन मेटल्स में ही देखने को मिलता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट भी सिमिलर ही है, इसी की तरह है थर्ड पॉइंट जो कहता है। तो थर्ड पॉइंट में डेफिनेशन जो बताई गई है वो बताई गई है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं हम, एक तरह से सेम है, बस डिफरेंस है तो एक चीज का डेफिनेशन। क्या डिफरेंस है भाई डेफिनेशन इसमें? ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी में ये पढ़ा था कि एक न्यूट्रल गैसियस एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन में चेंज हो रहा है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रल गैसियस एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही वो नेगेटिवली चार्ज आयन में चेंज हो रहा है। when any atom gains electron and become negatively charged, so the minimum amount of energy required to become negatively charged is known as electron affinity. And electron affinity measured in joule. We measure the electron affinity in the terms of joule. हम joule के terms में electron affinity को measure करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी जो केस होता है वो नॉन मेटल्स में ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स में नेगेटिविटी वाला केस ज्यादा होता है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट जो बोल रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होना चाहिए जो कंबाइनिंग एटम के बीच में वो कम होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। जब उनके बीच में नेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो क्या होगी? शेयरिंग अच्छी सी होगी, शेयरिंग जो होगी वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। जब ये शेयरिंग इजीली हो पाएगी, डिफरेंस कम होगा तो शेयरिंग अच्छी होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, शेयरिंग टेंडेंसी ज्यादा है। अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो शेयरिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, लेकिन यदि डिफरेंस कम होगा उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कम होगी तो शेयरिंग टेंडेंसी उनकी बढ़ जाएगी। जब उनकी शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फिफ्थ पॉइंट है ये इसको इजीली सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए? हमारा कम होना चाहिए। एक बार इन पॉइंट्स को आप देख लेना। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हमने क्लासिफाई किया है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स को और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को। सो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बात कर रही है कंपाउंड्स के बारे में, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवैलेंट। तो इसलिए अलग अलग इसलिए इनका हेडिंग बना के लिख दिया दोनों को, देखिए सेपरेट इसीलिए कर दिया ताकि हमें पता रहे कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम वैसा नॉर्मल बनाते हुए जाते हैं, फिर पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसको हम Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है हमारा नाइट्रोजन, इसको हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन को हम O2 से करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम बोलते हैं CCl4 और मीथेन को हम बोलते हैं CH4। तो ये हमारे सारे कौन से कंपाउंड है? ये हमारे सारे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। नॉन पोलर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या है नॉन पोलर में? पहला क्या है, सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल होंगे मतलब आप इजीली इनको डिवाइड करेंगे तो आपको सेम सिमेट्री देखने में। दूसरा, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है इनके बीच में, सेपरेशन नॉट पॉसिबल।
ये दो मेन चीजें हैं। और थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ते हैं इनका, डाइपोल मोमेंट जो होगा हमारा वो जीरो होगा। दे हैविंग द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। आप कैलकुलेट कर लेना, आपको डाइपोल मोमेंट इनका जीरो ही मिलेगा। पोलर में क्या होगा, सेपरेशन पॉसिबल। पोलर में हमारा सेपरेशन पॉसिबल है, सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो पोल होते हैं, एक को हम प्लस बोलते हैं, दूसरे को हम माइनस है, तो इजीली हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्योंकि आइदर आपके पास पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव आएगा। आपके पास दोनों चार्ज नहीं होंगे तो सिमिलर चार्ज कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सिमिलर चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। इसमें सिमेट्री बनना पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है। तो ये सिमेट्रिकल होते हैं जनरली, ये जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं। और थर्ड, डाइपोल मोमेंट एड्स अप। इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐड हो जाता है, इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं आता। तो इनमें एक मॉलिक्यूल है तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है अमोनिया मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं NH3, एक है तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं H2। इतना हमने इन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया। अब इन मॉलिक्यूल्स के बारे में आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक एम्प्टी स्लाइड बनाई हुई है, उस स्लाइड में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में, फिर नाइट्रोजन के, फिर ऑक्सीजन के, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर मीथेन, सबके बारे में एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। सो नाउ फर्स्ट इनको रख किया जाए। पहले तो ये बने हुए हैं कि हम किस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में। आई होप आपको ये फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा स्लाइड प्रेजेंटेशन के साथ में, उनको क्या थोड़ा अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इसमें डिटेल में सारे स्ट्रक्चर कवर किया जाए हर एक स्लाइड से। So now we are going to study about formation of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन। अभी हम जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें बड़ी दो सिंपल चीजें पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कितने होते हैं, एक ही होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक होता है। और हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो भी कितना होता है, 1 बता दी। मोल कंसेप्ट में पढ़ना है इसलिए बता दिया। तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्रॉस से डिनोट कर दी, एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा था जो फर्स्ट शेल है कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, दैट मीन्स यदि डुप्लेट कंप्लीट हो जाए तो स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। स्टेबिलिटी अटेन कैसे हो जाएगी, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है नोबल गैस से। तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हाइड्रोजन के पास, हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। दैट मींस यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए हाइड्रोजन के शेल में तो ये इजीली क्या कर लेगा, कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यदि हाइड्रोजन को अब स्टेबल होना है तो उसी के जैसा एक और चाहिए जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने दूसरा हाइड्रोजन बना, इधर 2 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये होगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे शेयरिंग करेंगे। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो देखो इसके पास 2 होगा, एक और 2, 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो गए। पहले वाले की 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब दूसरे वाले ने भी क्या किया, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले ने भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये इसके भी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हमको यहाँ क्लियरली दिख रहा है दोनों ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। कैसे, इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था, दोनों ने एक दूसरे से
एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब दोनों ने एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इनके बीच में क्या हुई, शेयरिंग। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन की इनके बीच में शेयरिंग हुई तो हमने पढ़ा था जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हमारा कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो सिंगल बॉन्ड बना, एच सिंगल बॉन्ड एच, और यही हमारा बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं H2। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का। आई होप आपको समझ में आएगा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। तो हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अब है हमारा वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम रफ कर देते हैं और हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इसी की तरह सिमिलर है, वो है क्लोरीन। क्लोरीन मॉलिक्यूल उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटीज हैं, बट फिर भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। शेयरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन के बारे में यदि हम बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। इसका ये पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं। इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। दैट मीन्स इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन की नीड है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और हमने पढ़ा था कोवैलेंसी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्लोरीन जो है हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मॉलिक्यूल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मॉलिक्यूल है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है। मतलब ये सारी चीजों को फुलफिल करता है। और दो क्लोरीन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 या नेग्लिजिबल ही होता है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे देखें 287 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 7 जो इलेक्ट्रॉन है सबको लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इस तरफ देखें तो ये भी क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हम ऐसा कर दें, ये दो क्लोरीन अलग अलग है, ये दोनों अनस्टेबल है, यदि ये एक दूसरे से, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर ले और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर ले, दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, इजीली इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कैसे, क्लोरीन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ये भी क्लोरीन आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई दोनों के बीच में। तो अब जो इनका जो स्ट्रक्चर बन गया वो बन गया क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, और जो इसको हम बोलेंगे Cl2। इस तरह से हमको क्लोरीन मॉलिक्यूल मिल गया। इसी तरह से नाइट्रोजन मिलेगा, इसी तरह से हमें और भी बचे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अब इसमें से हम जो मेन बात करेंगे, जो हमारा इम्पोर्टेंट आता है थोड़ा सा, वो आता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। थोड़ा सा हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है,
अल्फा कार्बन टेट्रा कार्बन टेट्रा। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड बेसिकली दो चीजें हैं। फॉर्मूला इसका होता है CCl4। उसमें दो चीजें हैं, कार्बन है और क्लोरीन। तो क्लोरीन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं अपनी नेक्स्ट पहली स्लाइड में। इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन की जो के पास जो होते हैं वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप पता कर लेना। तो बताया था कार्बन जो जनरली है वो शेयरिंग में बिलीव करता है। कार्बन हमेशा शेयरिंग के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, ना कि ट्रांसफर के लिए और कोऑर्डिनेशन। क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इसलिए क्लोरीन में हमारे इजीली प्रेफरेबल है। ये हमारा नॉन पोलर कंपाउंड कहलाता है। नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड कहलाता है। क्यों कहलाता है जरा इसको हम समझते हैं। ये हमारा कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब ये क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये ऊपर दूसरा क्लोरीन है तुम्हारा, फिर थर्ड क्लोरीन आ गया। मतलब ऐसे एटम्स को लाना है तो इजीली कंबाइन कर सकें। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले जाए तो कार्बन की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगी। और यदि एक एक क्लोरीन कार्बन में से हर क्लोरीन एक एक एटम ले ले कार्बन का, तो हर क्लोरीन मतलब जितने भी 4 क्लोरीन है इनकी भी क्या होगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। एक क्लोरीन ने कार्बन से ले ली, फिर यहाँ पे दूसरे क्लोरीन ने कार्बन से ले लिया, या तीसरे क्लोरीन ने कार्बन से ले लिया, और यहाँ चौथे क्लोरीन ने भी कार्बन से ले लिया। तो ये सब तो स्टेबल हो गए। अब क्या करेगा, कार्बन भी सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कार्बन क्या करेगा, सबसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कार्बन भी जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इससे एक लिया, इससे एक लिया, इससे एक लिया, इससे एक लिया। कार्बन पे 4 थे, 4 में कितने ऐड हो गए, 4 में और 4 ऐड हो गए, 8 हुए। कार्बन भी स्टेबल हो गया। क्लोरीन पे कितने थे, 7 थे, हर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया कार्बन से, 8 सबके कंप्लीट हुआ। तो यहाँ सबकी क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट। ऑक्टेट जैसे कंप्लीट हुई तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, Cl 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 एंड Cl। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, हमने सिमेट्री की बात की थी। यदि हम इसको 20 से डिवाइड कर दें तो हमें क्लियरली दिख रहा है एक क्लोरीन इस तरफ चला जाएगा, एक क्लोरीन इस तरफ चला जाएगा। और यदि हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी एक क्लोरीन मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा। दैट मीन्स इसमें सिमेट्री क्लियरली दिखाई दे रही है। सिमेट्री हमको इसमें क्लियरली विजिबल है। क्लियरली विजिबल है जब हमको सिमेट्री, तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, हमने बोला था डाइपोल मूवमेंट के बारे में। क्लोरीन में क्लोरीन 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 और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन कंपैरिजन में जो क्लोरीन है वो ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो क्लोरीन के साइड होगा। सब जगह जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो किस तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। जब क्लोरीन की तरफ होगा तो हमको दिख रहा है ये प्लस सेगमेंट में जा रहा है, ये माइनस सेगमेंट में जा रहा है, ये प्लस सेगमेंट में जा रहा है, ये माइनस सेगमेंट में। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इनका जो हम डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, दे हैविंग द डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी ये नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ये प्रूव हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो ये हो जाएगा आपका Cl 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 और ये Cl। ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर। थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, चलिए समस्या इसको थोड़ा अलग से view दे देते हैं। अब जो मीथेन का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है इसी की तरह,
मीथेन के स्ट्रक्चर को हम ना ड्रॉ करते हुए हम पोलर कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पोलर कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा। तो ये आपका आ गया कार्बन, Cl, Cl, Cl और ये Cl, और इसको हम बोलते हैं CCl, कार्बन टेट्रा। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सर में, वो है हमारा पोलर कंपाउंड में तीन स्ट्रक्चर सेम है, वाटर, अमोनिया और HCl। HCl ज्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा इजीली, पोलर कंपाउंड है। वाटर और अमोनिया का देखते हैं, पहले देखते हैं वाटर। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलेगी। तो वाटर में एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है हाइड्रोजन। को हमको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसमें होते हैं वो बंद होता है, और जो वाटर में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अच्छा, ऑक्सीजन का जो सेपरेट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो डबल बॉन्ड से होता है। ऑक्सीजन जो लेता है डबल बॉन्ड यूज करता है, जो हाइड्रोजन लेता है वो सिंगल बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है जरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको पता है ऑक्सीजन जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अब वाटर के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दोनों को, वाटर के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन मतलब शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन ने अपनी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरा हाइड्रोजन ने अपनी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो गई, प्लेट कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब इनने स्ट्रक्चर कैसा बनाया, अब यहाँ पे देखो, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिख रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिख रही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे यदि देखा जाए ढंग से तो ऑक्सीजन के पास ये वाला भी बॉन्ड है और ये वाला भी बॉन्ड है। दैट मीन्स ऑक्सीजन के बीच में जो, ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड है वो कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। दैट मीन्स ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरी करता है। हाइड्रोजन के पास देखो इस तरफ एक बॉन्ड है, इस तरफ एक बॉन्ड है, दैट मीन्स हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कैरी करता है। तो वाटर का फॉर्मेशन तो इजीली समझ में आ गया कि ये H2O बन गया। अब देखते हैं थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में। हमने पढ़ा ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ऐसा नहीं, ये 6 यहाँ लिखने के लिए, 6 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये क्या करेंगे, बैलेंस होने के लिए ये वाला जो ऑक्सीजन है इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला भी इससे क्या ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब देखो इनके बीच में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो डबल बॉन्ड होता है, ये हमेशा याद रखना है। इसलिए हमें हमेशा काउंट करना है ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होने चाहिए, या तो ऐसे में होने चाहिए या फिर ऐसे में होने चाहिए। काउंटिंग में 2 ही बॉन्ड आने चाहिए, तभी ऑक्सीजन बैलेंस माना जाएगा और तभी इक्वेशन सही। ये था हमारा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ऐसे ही हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड।
यानी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग सॉरी कोवैलेंट बॉन्डिंग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम अपना लास्ट पढ़ते हैं, उसको हम बोलेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल का मतलब है NH3। NH3 में N होता है और H होता है। हमें पता है H के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, N के पास 5 वैलेंस, क्योंकि N पर एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। जिसके साथ ये शेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना पहले डुप्लेट कंप्लीट करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन लेके तीनों हाइड्रोजन अपना एक डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास 5 तो है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, ये इन सारे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सबसे, देखो ये क्या हो गया, इसकी भी ऑक्टेट, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो गई। जैसे ही ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपके, देखो क्लियरली दिख रहा है कितने बॉन्ड्स, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इनके बीच में, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इनका जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, NH, इस तरह का ये NH3 मॉलिक्यूल बनेगा और इसको हम बोलेंगे NH3। लेकिन इधर भी एक बात याद रखने की जरूरत है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कैरी करता है। नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड कैरी करता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। यदि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट नहीं होंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट कहलाएगा। कैसे, देखो एक नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, दूसरा बॉन्ड ही है, तीसरा बॉन्ड ही है। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कैरी की हुई है और हाइड्रोजन एक एक सिंगल बॉन्ड कैरी की हुई है। अब ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऐसे हुआ। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 और 5। दूसरा नाइट्रोजन आया, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 और 5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है और इस वाले को भी 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसने इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले ने भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब दोनों ने एक दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। जब दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, दोनों ने क्या किया, अपने बीच की शेयरिंग काउंट की। तो देखो दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। जब इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड आता है वो ट्रिपल बॉन्ड आता है। हमको ये याद रखना कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट मींस या तो ये ऐसा हो 1 2 और 3, या फिर ये ऐसा 1 एंड ट्रिपल, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो में यदि कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा करने की कोशिश किया है। आई होप लाइक योर एफर्ट्स। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग द वीडियो।